नाम पर आमीन। हमने जिक्र किया नए आसमान और नई ज़मीन का। ये हम पढ़ते हैं तज़किरा मुकाशफ की किताब के 20वें और 21वें बाब में और 22वें में, यानी आखिरी बाब जो है मुकाशफा की किताब के, उसमें नए आसमान और नई ज़मीन का बहुत तज़किरा है। यूँ लगता है जैसे रसूल ने बहुत मुख्तसरन बात की हो, लेकिन क्योंकि अगले नबियों ने, यानी उन नबियों ने जो पहले बात हो चुके हैं, बातें की, और फिर मुकाशफा की सारी किताब का भी बगौर मुतालिया हो तो समझ आती है कि बहुत मुख्तसर बात नहीं की गई, बल्कि बातें काफ़ी वसी हैं। ये हम अपने इल्म की कुछ कमी की वजह से कह सकते हैं कि मुख्तसर है, और इसी वजह से समझने में दिक्कत भी महसूस करते हैं। मुकाशफा की किताब के आखिरी 3 बाबों में नए आसमान और नई ज़मीन का ज़िक्र है। इसी तरह अशआया नबी ने अपने आखिरी 2 अबवाब में इसका काफ़ी ज़्यादा तज़किरा किया है, यानी बाब नंबर 65 और 66 अशआया की किताब के। अगरचे अशआया ने पहले भी बहुत तज़किरा किया है, अगर हम इस किताब का और बेहतर मुताला करें, यानी अशआया की किताब का, तो नए आसमान और नए ज़मीन के समझने में काफ़ी मदद मिलती है। और जब तक हम ये दोनों किताबें काफ़ी अच्छी तरह ना जानें, मुश्किल है कि हम समझें। इसलिए हम इसका जो तर्जमा है वो भी इधर उधर ले जा सकते हैं, जैसे कि हम अपनी कम इल्मी की वजह से कई दूसरे सहायक का तर्जमा और मतलब भी अपने इल्म और मर्ज़ी के मुताबिक इधर उधर ले जाते हैं, जिससे हम मसीहियों को सही तालीम नहीं दे सकते। तो मुख्तसरन शुरू करता हूँ, क्योंकि अगरचे मैं कहूँ या कोई भी आला मुबश्शिर कहे या साहिब इल्म जो बहुत ही बड़े बड़े हैं वो भी बात करें मुकाशफा की, तो भी उस शख्स को ही कुछ समझ आएगी या फ़ायदा होगा जिस पर खुदावन मेहरबान है, यानी जो प्यासा हो, जो प्यासा हो वो ही आब हयात के चश्मा तक पहुँचेगा, मसीही हो या गैर मसीही। क्योंकि प्यासा ही पहुँचेगा जिसको तलब है, जो कोशिश करेगा, क्योंकि खुदावन उन्हीं को मिलेगा जो उसकी राह देखते हैं, जो उसकी इंतज़ार में है। तो 21वें बाब में और 22वें तज़किरा है, और थोड़ा सा तज़किरा मुकाशफा की किताब में 20वें में भी है। थोड़ा सा इसलिए कहता हूँ
کیونکہ آسمان اور زمین کا تذکرہ ہے، نئے آسمان اور نئی زمین کا۔ اور میرے عزیزو، یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ پرانا آسمان اور پرانی زمین پرانی کلیسیا کے بارے میں ہے، یعنی بنی اسرائیل جس کے سورج، چاند اور ستارے تھے جو انہیں روشنی دیتے تھے، یعنی خدا کی تعلیم دیتے تھے۔ سورج، چاند اور 12 ستارے جس کا تذکرہ ہم یوحنا کے مکاشفہ کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں، 12ویں باب میں بھی دیکھتے ہیں کہ وہ عورت جو بھاگ گئی، جو سورج کو اوڑھے ہوئے تھی، جس کے پاؤں میں چاند اور 12 ستاروں کا تاج اس کے سر پر تھا۔ یہ بنی اسرائیل کو ظاہر کرتا ہے، خدا ان کے ساتھ تھا۔ تو آسمان اور زمین یہ پرانی کلیسیا کی بات ہے، اور نیا آسمان اور نئی زمین مسیح کی کلیسیا کے بارے میں تذکرہ ہے۔ یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے تاکہ ہم ادھر ادھر نہ بھٹکیں۔ اور جو بات میں اب کرنے والا ہوں مکاشفہ کے مطابق اور اشعیاء نبی کے مطابق، صرف 2 کا ہی حوالہ دیں گے، کیونکہ یہ باتیں تو ارمیا نبی اور حزقیہ نبی اور دوسرے انبیاء مثلا زکریا میں بھی اس کا تذکرہ ہے کافی زیادہ۔ ہم مختصر طور پر تھوڑا تھوڑا تذکرہ کریں گے تاکہ بات کو ہم سمجھ لیں اور ہمیں فائدہ ہو، تاکہ پاک کلام کے بھیدوں کو تھوڑا بہت سمجھیں۔ اور یہ صرف پاک روح کی وساطت سے ہی ہے، ورنہ بندے کی کہاں عقل، اس کی قدرت مجال کہ وہ خدا کی باتیں سنیں اور سیکھے اور سمجھے، لیکن خدا یہی چاہتا ہے کہ ہم سمجھیں۔ تو 20ویں باب میں یوں لکھا ہے، پھر میں نے ایک بڑا سفید تخت اور اس کو جو اس پر بیٹھا ہوا تھا دیکھا، زمین اور آسمان اس کے سامنے سے بھاگ گئے اور انہیں کہیں جگہ نہ ملی۔ آمین۔ یعنی آسمان اور زمین بھاگ گئے ہیں اور انہیں کہیں جگہ نہ ملی، یعنی ختم ہو گئے۔ یہ نہیں لکھا کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے گئے اور وہاں آباد ہو گئے، وہاں بسے اور وہاں ہیں، نہیں، انہیں کہیں جگہ نہ ملی، مطلب یہ ہے کہ ختم ہو گئے۔ پھر 21ویں باب میں بڑا واضح کچھ زیادہ لکھا ہوا ہے، یوں کہتا ہے، یوں لکھتا ہے رسول، پھر میں نے نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا، کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی تھی اور سمندر بھی نہ رہا تھا۔ پھر میں نے شہر مقدس نئے یروشلم کو خدا کے پاس سے آسمان سے اترتے دیکھا۔ یہ اس دلہن کی طرح راستہ تھا جس نے اپنے شوہر کے لیے شرنگار کیا ہو۔ پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا، دیکھ، خدا کا خیمہ آدمی کے درمیان ہے اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا۔
اور اس کے لوگ ہوں گے اور وہ ان کا خدا ہوگا اور وہ اس کی عبادت کریں گے، اور خدا ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا، پھر نہ موت رہے گی، نہ ماتم، نہ آہ و نالہ، نہ درد، پرانی چیزیں جاتی رہیں۔ جو تخت پر بیٹھا تھا اس نے کہا دیکھ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں۔ پھر اس نے کہا لکھ لے یہ باتیں سچ اور برحق ہے۔ پھر اس نے کہا یہ باتیں پوری ہو گئی۔ جو غالب آئے وہ ان چیزوں کا وارث ہوگا، مگر بزدلوں، بے ایمانوں، گھنونے لوگوں، بت پرستوں، جادوگروں اور سب جھوٹوں کا حصہ آگ میں جلنے والی جھیل میں ہوگا، آگ سے جلنے والی جھیل میں ہوگا۔ آمین۔ اچھا، یہ ہم نے دیکھا کہ دلہن کی طرح آراستہ تھا وہ شہر جو آسمان سے اترتے ہوئے رسول نے دیکھا۔ اور کہتا ہے کہ خدا کا خیمہ آدمی کے درمیان ہے، یعنی خدا آدمی کے درمیان خود رہے گا۔ پھر آگے چلتے ہیں۔ پھر وہ فرشتہ جو یوحنا رسول کے ساتھ ساتھ ہے اور اسے سب باتیں دکھاتا ہے اور سمجھاتا ہے اور سناتا ہے، وہی اسی سے کہتا ہے آ میں تجھے برا کی بیوی یعنی دلہن دکھاؤں، دلہن یعنی برا کی بیوی دکھاؤں۔ وہ مرو میں بڑے اونچے پہاڑ پر لے گیا، وہاں سے اس نے شہر یروشلم مقدس شہر کو آسمان پر خدا کی طرف سے اترتے دکھایا۔ آمین۔ یعنی اب اس نئے آسمان اور نئی زمین کی بات ہے، اور یہ دلہن سے مشابہ ہے جو آراستہ ہو، خوش ہو، اپنے دلہا کو ملنے کے لیے بنی سمری، خوبصورت بنی، تاکہ اس کا دلہا خوش ہو اور وہ بھی خوش ہو۔ اور اس کو ایک شہر سے بھی تشبیہ دیتا ہے جس کا تذکرہ بڑے اچھے طریقے سے 21ویں اور 22ویں باب میں کیا گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم ذرا غور کر کے یہ حدود اربع نقشہ اس شہر کا دیکھیں، کیونکہ یہ خداوند کا شہر ہے جس میں خداوند کا خیمہ ہے، خداوند اپنے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، سکونت کرتا ہے، میں بستا ہے۔ اور اس شہر میں 21ویں باب کی آخری آیت دیکھیں، لکھا ہے اس میں کوئی ناپاک چیز یا گھناؤنے شخص یا ہر طرح کا جھوٹ کا پسند کرنے والا اور گھڑنے والا داخل نہ ہوگا، بلکہ صرف وہی جن کے نام برا کی کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں، یعنی برا کی کتاب حیات میں جن کے نام ہیں اور جو پاک ہیں وہی داخل ہوں گے، جنہوں نے برا کے صابن سے، جو برا سے حاصل کیا، اپنے جامع صاف کیے ہیں۔ وہ جو پوشاک باغ عدن میں ہمارے باپ آدم کی پوشاک اور ماں ہوا کی پوشاک میلی ہو گئی تھی، اس کو صاف کرنے کے لیے صرف ایک ہی صابن ہے اور وہ برے کا خون ہے، جس سے پوشاک کو دھو کر
पोशाक को साफ करके फिर खुदा के सामने हाजिर हो सकते हैं और उनके नाम बर्रा की किताब में लिखे जाते हैं, जिनके जामे यानी पोशाक बर्रा ही के खून से साफ होती है। यानी जो बर्रा की मानते हैं उसके हुक्म को बजा लाते हैं और उस पर ईमान लाते हैं, क्योंकि खुदा की जो किताब हयात थी बाप की, जिसमें आदम था उसकी सारी औलाद, वो किताब हयात में लिखे गए, लेकिन नाफरमानी के बायस वो नाम काटे गए सब के सब। इसलिए उसी वक्त बागैर में बर्रा ने यानी बेटे ने वादा किया था कि मैं जाऊंगा और इन सब को छुड़ा लूँगा। तो जब वो आया तो उसने अपनी बात पूरी की, कुर्बानी दी और बाप से सब कुछ हासिल किया, और बाप ने वो किताब अपने बेटे को यानी बर्रे को दी, जिसने कुर्बानी अपनी चढ़ाई, ताकि वो इन सब लोगों को जो उसके खून में अपने जामे धोते हैं पाक साफ करके अपने पास ले आए और उनके नाम बर्रा की किताब हयात में लिखे जाएं, जो कभी मिटाए ना जाएंगे। अच्छा, तो शहर की बात हम करते हैं, जिसका सारा हदीस दरबा और बड़ा कुछ उसके मुतालिक लिखा हुआ है। तो ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि पहले जो शहर था जिसमें शेर और जंगली दरिंदे सब फाड़ते और खाते और मारते थे, यानी तकब्बर का शहर, जो बाब आदम के गुनाह के बाद अबलीस ने बनाया, सजाया और बसाया, क्योंकि सब कुछ अबलीस ने बाप आदम से छीन लिया था, ये अबलीस के हवाले कर दिया गया था। तो तकब्बर का शहर था यानी अबलीस का शहर, उसको खुदावंद बदलेगा अपने शहर में, जो नया यरूशलेम है। यानी पुराना जो यरूशलेम था तकब्बर का शहर, अब आसमानी नए यरूशलेम में तब्दील होने वाला है। तो एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, हम कहते हैं कि जब नया आसमान और ज़मीन, नई ज़मीन होगी, क्या क्या कुछ होगा, उसमें क्या होगा, मौसम कैसे होंगे, लोग कैसे होंगे, जब होगा मेरे जीजू नया यरूशलेम यानी शहर मुकद्दस जो खुदा के पास आसमान से उतरा, वो बन चुका, वो हाजिर है, यहाँ है इसी ज़मीन पे। मसीह खुदावंद के आने के बाद उसकी बादशाही जो शुरू हुई और बढ़ती जाती है, जिसकी कोई हद नहीं। नया आसमान, नया यरूशलेम मौजूद है, जो बढ़ता जाता है और बढ़ता ही रहेगा, जिसकी कोई हद नहीं। हम देखेंगे कि मुकाशवा में ये यही बताता है, यही बात उसके बढ़ने की ज़करिया अपने दूसरे बाब में बताता है कि फरिश्ता उसे समझाता है कि उसके शहर के यानी नए यरूशलेम का कोई हद नहीं, कोई दीवार नहीं, बगैर दीवारों के बस्ती है, क्योंकि वहाँ हैवान और इंसानों की कसरत है, यानी बहुत ज़्यादा होंगे और उनको थोड़ी जगह में रखा नहीं जा सकता, उनके लिए बहुत सारी जगह दरकार है। तो ये है नया यरूशलेम जो ज़करिया नबी हमें समझाता है, दिखाता है, फरिश्ता ने उसे समझाया। यही बात कि ये बहुत बड़ा ऐसा शहर है
جس میں اتنے لوگ ہیں، ان گنت لوگ، اور ان کو جگہ اتنی چاہیے کہ بہت ساری جگہ ہو تاکہ وہ اس میں بسیں۔ یہ بات عیسیٰ نبی ہمیں سمجھاتا ہے اپنے 54ویں باب میں اور 49ویں باب میں تذکرہ کرتا ہے، اور یہ پھر 54ویں باب میں 54th چیپٹر وہاں تذکرہ کرتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ 49ویں باب میں عیسیٰ نبی ہمیں کیا کہتا ہے کہ بہت بڑا ہوگا، کیسے ہوگا۔ وہ کہتا ہے میری زندگی کی قسم، خدا فرماتا ہے، تو ان سب سے گویا زیور سے راستہ ہوگا، تو دلہن کی طرح ان سے مزین کیا جائے گا۔ تیری تباہی اور بربادی اور ویران زمین اب باشندوں کے لیے تنگ ہوگی، اور تیرے فرزند تیرے کان میں کہیں گے مجھے جگہ دے، کیونکہ میرے لیے جگہ تنگ ہے، مجھے جگہ دے تاکہ میں بسوں۔ اور تو اپنے دل میں کہے گی کہ میرے لیے کون ان کا باپ ہوا، میرے لیے کون ان کا باپ ہوا، میں تو بھانج، بے اولاد، اسیر اور قیدی تھی، تو کس نے ان کی پرورش کی، میں تو پسماندہ تھی، تو یہ کہاں تھے۔ یعنی اتنے فرزند ہوں گے اس کے نئے یروشلم میں کہ جگہ کم پڑ جائے گی، اور وہ اپنی ماں سے جگہ مانگیں گے کہ مجھے اور ہمیں اور جگہ چاہیے، زیادہ جگہ درکار ہے، جیسے زکریا نبی کہتا ہے۔ پھر 49ویں باب میں کہتا ہے، 54ویں باب میں عیسیٰ نبی یوں کہتا ہے، آئے بھانج جس کے بچے نہیں ہوتے، پہلے پیرے میں شروع میں، آئے بھانج جس کے بچے نہیں ہوتے، اور تو جسے اے بھانج جس کے بچے نہیں ہوتے خوشی سے للکار، اور تو جسے درد ذہ نہ لگے خوشحالی کے لیے اپنی آواز بلند کر، کیونکہ چھوڑی ہوئی کی اولاد شوہر والی کی اولاد سے زیادہ ہوگی۔ اپنے خیمہ کے مسکن کو وسیع کر، اپنے مسکن کے پردوں کو پھیلا، کفایت شعری نہ کر، اپنے رسوں کو لمبا بنا، اپنی میخوں کو مضبوط کر، کیونکہ تو دہنی طرف کو اور بائیں طرف کو پھیلے گی، اور تیری نسل قوموں کی وارث ہوگی، اور عبران شہروں کو آباد کرے گی۔ آمین۔ یعنی یہاں نبی فرماتا ہے، عیسیٰ نبی، کہ اپنے مقام کو، اپنے مسکن کو وسیع کر، بہت پھیلا، مسکن کے پردوں کو، یعنی خیمہ کی وہ صورت دیکھتا ہے۔ خیمہ کہتا ہے یروشلم کو کہ اس کے پردوں کو پھیلا، خیمہ کو بڑا کر، چوڑا، بہت چوڑا، اپنے رسوں کو لمبے لمبے رسے بنا، اور کیلے جو میخیں ہیں مضبوط کر، کیونکہ تو دہنی طرف کو اور بائیں طرف کو پھیلے گی، یعنی بہت پھیلے گی۔ اور بھی بڑی جگہ پر لکھا ہوا ہے یہی بات کہ شہر یروشلم
बेफसील बस्तियों की मानद होगा, यानी बहुत फैला हुआ। चलिए एक और छोटी सी बात करके मैं ख़त्म करूँगा, ताकि बात लंबी ना हो, मसालें दे दे के। इशाया के 34वें बाब में वो कहता है आखिरी पैरे में, सहून हमारे इज्तिमा के मकाम को देख, तेरी आंखें यरूशलेम को देखेंगी, जो ऐसा खैमा है जो गिराया ना जाएगा, जो रात का मकाम है और इसकी कोई की रस्सा भी ना टूटेगा और कोई कील भी ना टूटेगी। वहाँ खुदावंद ही हमारी सरहद है, वहाँ खुदावंद ही हमारी सरहद है, यानी उसी पानी का दरिया। यानी ये भी ज़हर करता है, बताता है नबी कि बहुत बड़ा उसी पानी का दरिया जिसकी कोई हद नहीं, समुंदर ही समुंदर। और इसकी बात फिर हम मुकाशवा में देखते हैं कि उस शहर का तज़किरा करता है जो चकोर है, बल्कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है, यानी क्यूब की तरह हर तरफ से, तीनों तरफ से बराबर है। वो कहता है शहर के 12 दरवाजे, जिस पर बनी इसराइल के 12 कबीलों के नाम लिखे हुए हैं, और उन 12 दरवाज़ों पर 12 फरिश्ते हैं। वो बताता है कि ये 3 दरवाजे मशरिक़ की तरफ, 3 दरवाजे शुमाल की तरफ, 3 दरवाजे जनूब की तरफ और 3 दरवाजे मगरब की तरफ हैं। इसका क्या मतलब है? 12 दरवाजे भी ज़ाहिर कर दिया। इससे एक तो मतलब ये है कि वो जो शरीयत है, जो 10 हुक्म मिले और शरीयत हज़रत मूसा को मिली, वो बेबुनियाद बातें नहीं हैं, झूठी नहीं हो गई, जैसे कि कई हम कहते हैं, हम इसे समझते हैं। वो भी बाकी रहेगा, बाकी रहेगा। इसका मैं एक हवाला एक और देना चाहता हूँ। अशाया की किताब के 66वें बाब में आखिरी आयत में देखें, रसूल कहता है, नबी कहता है, जिस तरह नया आसमान और नई ज़मीन जिन्हें मैं पैदा करूँगा मेरे ज़रूर कायम रहेंगे, इसी तरह तुम्हारा नाम और तुम्हारी नस्ल कायम रहेगी। आमीन। अच्छा, 12 दरवाज़ों की बात हुई थी, यानी चारों तरफ 3-3 दरवाजे, यानी 12 दरवाजे हैं, चारों तरफ हैं। इसका मतलब सिंपली सादा तौर पे ये है कि हर तरफ से खुला ही खुला है, खुला ही खुला, जहाँ से कोई मर्जी आए, जब मर्जी आए। खुले हैं दरवाजे, हर तरफ खुले हैं दरवाजे, और ये दरवाजे कभी बंद नहीं होते। काशोई किताब में लिखता है, रसूल लिखता है, ये दरवाजे ना दिन को बंद होंगे और ना रात को। फिर एक दफ़ा कहता है, एक जगह पे लिखता है, उसके दरवाजे दिन को बंद ना हो गए और रात वहाँ ना होगी, यानी दिन ही दिन है, दिन में रात है ही नहीं, यानी हर वक्त लोग उसमें आते रहते हैं। वहाँ हर वक्त रहती है, लोग आते ही रहते हैं, वहाँ घंटों का हिसाब ही नहीं कि 11 बज गए, रात के 12 बज गए, 1-2 बज गया, सब सोए, नहीं। जाने वाले जिनको खुदा की तलाश है हर वक्त वहाँ जाते हैं। तो 12 दरवाज़ों का मतलब ये है, जैसे सब नबी ने समझाया, कि वो कभी बंद नहीं होते वहाँ, यानी उस शहर में हर वक्त आमद होती रहती है लोगों की।
और जिस तरह वो कहता है, इस शहर के 12 दरवाजे हैं और उसकी जो दीवार है उसकी 12 बुनियादें हैं जिस पर बर्रा के 12 रसूलों के नाम लिखे हुए हैं। यानी शहर पनाह ये है, यानी ये है कलीसिया, नई कलीसिया, जिसकी बुनियाद 12 रसूलों पे है। 12 रसूलों के नाम लिखे हुए हैं जिन्होंने मसीह खुदावन से तालीम पाई। और जब फरिश्ता उसके साथ साथ उसे चीज़ दिखाता था, समझाता था यूहन्ना रसूल को, कहते उसके पास मापने के लिए एक सोने का गज था, पैमाना था, ताकि वो शहर को मापे और शहर उसके फाटकों का नापे और शहर पनाह को मापे। ये शहर जब उसने मापा सारा तो 12,000 फरलांग निकला, हर तरफ से 12,000 फरलांग, इधर उधर और ऊपर से। इसका मतलब ये है कि 12 के साथ ज़रब दे 144 हुआ, जिसके उसने शहर आदमी की पैमाइश के साथ मापा था, उसकी 144 हाथ निकली। 12 ही 12 का मतलब ये है कि 12 को 12 से ज़रब 144 हुआ, उसको फिर 12 से ज़रब दें, उसके हासिल को फिर 12 से ज़रब दें, उसके हासिल को फिर 12 से ज़रब दें, उसके हासिल को फिर 12 से ज़रब दें, इसी तरह 12 दफ़ा ज़रब दें तो बात इन्फिनिटी तक आ जाती है। यानी इतना हो जाता है जिसका कोई हद नहीं, बेशुमार लोग। उसकी लंबाई चौड़ाई इतनी है जिसकी कोई हद नहीं, कोई माप नहीं सकता। ऐसे ही उसमें बसने वाले भी हैं जिनको कोई गिन नहीं सकता। अच्छा, तो ये शहर लिखता है रसूल के खालिस सोने का है, खालिस सोने का शहर है। और उसके दरवाजे जो हैं जैसे 12 कबाइल के नाम है, हर एक दरवाज़ा एक अलहदा मोती का है, अलहदा अलहदा मोती, बस ज़बरदस्त चमक वाले। इसी तरह 12 बुनियादें 12 हीरों की हैं, यानी 12 हीरे, मोती, मोती दरवाजे और हीरे बुनियादों के लिए, जिसमें उसने 12 नाम भी लिखे हैं। पहला शंगई सीब, फिर नीलम हुआ, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 11वां और फिर 12वां यकूत का, यानी 12 हीरों के नाम भी लिखे हुए हैं। और ये शहर की बुनियादें हीरों की और फाटक मोतियों के हैं और सारा शहर सोने का है, खालिस सोने की तरह, साफ शीशे की मानक। और लिखता है उसकी जो सड़क है जिसमें से जिस पर लोग आते हैं वो भी खालिस सोने की है। अच्छा, ये जो मोतियों की बात है और हीरों की बात है, ये बात दूसरे नबी भी करते हैं। मसलन यशायाह नबी अपने 54वें बाब में कहता है हीरों की बाबत, ये जो कैसे बने हीरे हमने देखे, फाटक मोतियों के, एक अलग अलग मोती का एक फाटक, और 12 बुनियादी 12 हीरो की नाम लिखे हुए हैं। यशायाह नबी कहता है अपने 54वें बाब में, ऐ तू मस्कीन जिसे तूफान ने झोंका और जो तसल्ली से महरूम है, मैं तेरी बुनियाद शब चिराग से और तेरी नीलम से रखूँगा। मैं तेरे कुंगरे को यकूत अहमर का और तेरे फाटक यकूत अर्गवानी के और सब किनारे नगीनों के बनाऊँगा।
तेरे सब लोग खुदावंद से तलीम याफ्ता होंगे। कि खुदावंद से तलीम याफ्ता होंगे, यूहन्ना की इंजील के 6 बाब में लिखा है। वो समझाता है कि ये जो खुदावंद से तलीम याफ्ता है, खुदावंद से तलीम पर वही उधर जाएंगे। और ये हमने हीरे मोती देखे जिसे शहर बना, यशायाह नबी भी वही कहता है कि मैं तेरी बुनियाद हीरों से रखूंगा, तेरे फाटक और तेरी दीवारें, तेरे कुंगरे सब मोतियों के बनाऊंगा। अच्छा, तो ये हीरे और मोती क्या है? ये हीरे और मोती खुदावंद के खास चुने हुए बंदे हैं जो इस शहर में आते हैं। इन्हीं से ये शहर बनता है। बुनियादें 12 रसूलों की, जो कि हीरे हैं, चमक रखते हैं, रोशनी देते हैं। और मोती भी रोशनी देते हैं, कुछ कम। तो ये शहर इन लोगों से बना हुआ है जिसकी कोई वसत नहीं, बेफसील, बहुत ही बड़ा, हर तरफ से दिन रात आमद इसमें लोगों की होती है। तो आगे चलते हैं ताकि बातों में उलझ ना जाए। मैं हीरो की बात कर रहा था। ये है इन हीरों को और मोतियों को, यानी खुदावंद के जो बंदे हैं, रसूल है, प्रीस्ट है, मुबश्शिर हैं, सारी दुनिया में बेतहाशा होंगे और खुदावंद की तालीम देंगे। और इनको यशायाह नबी बलूत भी कहता है। वो 61वें बाब में इनको बलूत कहता है, बड़ी तशरीह करके। जैसे कहता है, रूही खुदावंद मुझ पर है, उसने मुझे भेजा कि मसीहों को खुशखबरी दूँ। उसने मुझे मसा किया कि खस्ता दिलों को दुरुस्त करूँ और सब मातम करने वालों को तसल्ली दूँ, ताकि इसराइल के मातम करने वालों को तसल्ली दिलाऊँ और खुदावंद के साले मुकद्दस और खुदावंद के इंतकाम के दिन का इश्तिहार दूँ। और वो कुछ कहता है, वो सब खुदावंद के बलूत कहलाएंगे ताकि उसका बिशारत दे। तो ये यानी बलूत है। फिर 55वें बाब के आखिरी पैर में कहता है, तुम सब सलामती से रवाना होगे, खुशी से रवाना किए जाओगे। पहाड़ और पहाड़ियाँ तुम्हारे आगे गीत गाना शुरू करेंगे और मैदान के सब दरख्त तुम्हारे अपने हाथों से ताले बजाएंगे। कांटों के बदले सरू और झाड़ी के बदले आस निकलेगा। ये खुदावंद के लिए नाम और अब्दी निशान होगा जो मिटाया ना जाएगा। यानी जो बड़े बड़े दरख्त हैं, ऊंचे दरख्त हैं, ये सब के सब जो दिखाई देते हैं, साया देते हैं और जाहिर होते हैं, खुदावंद के नाम का इश्तिहार देते हैं, इनको भी इन लोगों के से ही निस्बत दी गई है, यानी तशबीह दी गई है। ये हीरे मोती और बलूत और बड़े बड़े दरख्त, ये सब खुदावंद के मुबश्शिर हैं, उसके रसूल, उसके कहन, उसके लोग हैं। हीरे मोती का मतलब ये है। और फिर आगे बयान करता है कि इस शहर में मैंने इस शहर में कोई मकदस ना देखा, क्योंकि खुदावंद कादिर मुतलक बर्रा उसका मकदस है। उस शहर में सूरज और चिराग की रोशनी की कुछ हाजत नहीं, क्योंकि बर्रा उसका चिराग है। इस शहर में कोई और तलीम नहीं होगी। चांद सूरज का मतलब ये है कि तलीम दें, रोशनी दें, रोशनी फैलाएं।
تعلیم دیں، خدا کی تعلیم دیں، نہیں جیسے کہ پرانے یروشلم میں شہرون میں سورج چاند اور 12 ستارے تھے جو تعلیم دیتے رہے، خدا ان کی تعلیم دیتے رہے، ان کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ خدا وہاں مقدس ہے اور برہ اس کا چراغ ہے، اس شہر میں برہ ہی صرف چراغ ہے، وہ سب خدا ان سے تعلیم یافتہ ہوں گے، تعلیم پائیں گے اور قومیں اس کی روشنی میں چلیں گی، یعنی برہ کی روشنی میں چلیں گی۔ اور اس کا تذکرہ رسول کرتا ہے عیسائی نبی اپنے 60ویں باب میں کرتا ہے کہ اس کے دروازے نہ دن کو بند ہوں گے نہ رات کو۔ پھر آگے کہتا ہے بعد از این سورج تجھے روشنی نہ دے گا، نہ چاند اپنی چاندی سے تجھے روشن کرے گا، کیونکہ خدا تمہارا ابدی نور ہوگا اور تمہارا فخر ہوگا۔ تیرا سورج غروب نہ ہوگا اور نہ تیرا چاند گھٹے گا، کیونکہ خداوند تیرا ابدی نور ہوگا۔ یعنی یہی اس بات کی شہر کی بات ہے کہ وہاں سورج غروب نہ ہوگا، جیسے ہوا عام دنوں میں ہم دیکھتے ہیں، اور اس کا سورج غروب ہوا جب ہم دیکھتے ہیں مکاشفہ کی کتاب میں سورج اور چاند اور غروب ہوئے اور ستارے گرے، جیسے تیز ہوا چلنے سے پھل گر پڑتا ہے درختوں کا، اور یعنی غروب ہی نہ ہوں گے۔ کیوں غروب ہو؟ کیونکہ خداوند مسیح برہ اس کا چراغ ہے۔ بعد ازیں تجھے سورج روشنی نہ دے گا، نہ چاند اپنی روشنی سے چاندی سے روشن کرے گا، یعنی سورج چاند کی وہاں ضرورت نہیں، نہ وہاں ہوں گے، اس کا مطلب یہ ہے۔ تو اب یہ مختصراً بات ہوگی، بہت مختصر لمبی بات اور نہیں کرتا تاکہ اتنے کو سمجھ لیا جائے اور بات لمبی ہو کر بے پھل نہ ہو جائے۔ پھر وہ سڑک کی بات کرتا ہے کہ سڑک میں لوگ آتے ہیں، وہ سڑک بھی شفاف شیشے کی مانند خالص سونے کی ہے۔ اس سڑک میں ایک دریا بہتا ہے، اب حیات کا دریا، جو خدا اور برہ کے تخت میں سے بہتا ہے، کیونکہ اس شہر میں خدا اور برہ کا تخت ہے، اور اس تخت کے بیچ میں سے یہ اب حیات کا دریا بہتا ہے، یعنی خدا کا پاک روح۔ تو یہاں تینوں ہستیاں ہیں، باپ، بیٹا اور روح القدس اکٹھے ہیں، تینوں ایک جیسے برابر اور ایسا ایک جیسا ہی کام کرتے ہیں۔ اور سڑک ایسی ہے سونے کی، اور سڑک کے بیچ میں اب حیات کا دریا بہتا ہے۔ سڑک کے وار پار، یعنی دریا کے وار پار زندگی کا درخت ہے۔ اس درخت میں 12 قسم کے پھل آتے ہیں اور ہر مہینے پھلتا ہے، اس کے پتے سے قوموں کو شفا ہوتی ہے۔ 12 مہینے 12 پھل، پھر وہی 12 کی بات ہو گئی، یعنی 12 کا ہندسہ اتنا مقدس اور مکرم ہے جس سے زندگی چلتی ہے، تو اس کے پتوں سے قوموں کو شفا ہوتی ہے۔ یہی شہر ہی کی مثال ہے کہ اس کی 12 بنیادیں اور درخت بھی آ گیا جس میں 12 قسم کے پھل آتے ہیں، اور اس میں وہی چلے گا۔ اس میں اس شہر کے بارے میں، سڑک کے بارے میں بڑا بیان ہے، بہت۔ اگر موقع ہو کسی مسیحی کے پاس
ईशा नबी का किताब का 11वां बाब पढ़े लाजमी। बहुत ही बातें वहाँ हैं, बहुत सारी बातें, इंकशाफात, भेद की बातें, पेश गोइयाँ जो पूरी हुई हैं, पूरी हो रही हैं। तो वो कहता है इसके आखिरी आयत में कि जो शुरू से बतरे उनके लिए ऐसी शाहरा होगी जैसी उस वक़्त थी जब बनी इसराइल मुल्क मिस्र से निकला। यानी मुल्क मिस्र से निकला था तो बनी इसराइल खुदा उनके पीछे पीछे चलते थे, यानी वो शाहरा ऐसे है। फिर शाह नबी अपनी 35 बार में कहता है वे वहाँ एक शाहरा होगी और एक रास्ता होगा जो मुक़द्दस रास्ता कहलाएगा, नापाक उसमें ना चलेगा। वहाँ अदना आदमी भी गलती ना करेगा, बल्कि जिनका खुदा ने फिदिया दिया उस पर चलेंगे। वहाँ कोई शेर ना होगा, ना कोई दरिंदा वहाँ पाया जाएगा, ना उस पर चढ़ेगा, बल्कि जिनका खुदा ने फिदिया दिया वो उस पर चलेंगे। यानी सिरा पर कौन चलेंगे? जो शेर बब्बर धारने वाले मगरूर लोग हैं, बड़े बड़े तकब्बर वाले, वो नहीं चलेंगे, वो नहीं चढ़ सकेंगे, नहीं आ सकेंगे, बल्कि अदना हलीम जिनका खुदा ने फिदिया दिया, जिनके नाम बर्रा की किताब हयात में लिखे हैं, जो बर्रा के पीछे पीछे चलते हैं वो ही आएंगे। और वो ही आएंगी इस मुकद्दस रास्ते से, इस मुकद्दस सड़क में से, पाक सड़क में से जो सोने की बनी है। वो अब हयात का पानी पीते आएंगे, इस दरख्त का फल खाते आएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। ये वो चीज़ें हैं, दरख्त का फल जो पाक सैक्रामेंट्स के ज़रिए से कलीसिया अपने मसीहियों को देती है मसीह के हुक्म से। और वो आहिस्ता आहिस्ता उस सड़क पर चलते हैं, अगरचे तकलीफ़ें हों, दुख हों, लेकिन फिर भी वो खुदा उनकी मदद से फल खा खा के, अब हयात का पानी पी पी के, तो आहिस्ता आहिस्ता उस सड़क पर गामज़न रहते हैं और आखिरकार मसीह के फजल से उस शहर में पहुंच जाते हैं जहां मसीह उनका इंतज़ार करता रहता है, जहां हम सब का भी इंतज़ार करता है। हम सबों की मंजिल यही शहर है और हम सब के सब इसी शहर में खुदा उनके पाक रूह के वसीले से पहुँचेंगे, जहाँ मसीह खुदा हमारा मुंतज़र है। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीले से खुदा की बरकत हो। आमीन।